Okay, fine. Then I'm starting. We are back with our new topic. Very good afternoon to everyone. It's a great support and inspiration from you all that we have reached to nice views and subscribers in less number of days. And I really hope that we will be continuing our progress with a huge rate, and we will be discussing many more things in upcoming sessions. So, if it's about today's class, then I am continuing with the topic of enzyme nomenclature, classification, functions, and examples. In our very last class, we read about how do enzymes work according to lock and key model, what is the concept of activation energy. We also read about an example of carbonic anhydrase, where we saw the enormous power of enzymes. However, enzymes catalyze a reaction. How do they increase the rate of reaction by decreasing the activation energy? So all these concepts got very clear in our mind in our last video and last lecture. Today, we will be talking about enzyme nomenclature, classification of enzymes, their functions, and examples. From neat or competitive point of view, it will be a really important topic because you are asked about various enzyme classes and few common enzyme classification numbers in exams that you must remember. Also, before moving further for plant physiology and learning the tedious cycles and processes such as glycolysis, Krebs cycle, TCA cycle, and all these related things, we first memorize the functions that enzyme does, कि एंजाइम क्यों होते हैं, क्या उनका काम होता है, किस तरह के एंजाइम्स हैं, कैसे कैसे एंजाइम्स के नाम हैं और वो अपने नाम के अकॉर्डिंग कैसा कैसा काम करते हैं. बिफोर going into deep of any topic, we need such basic knowledge because enzymes are very important part of all the body reactions, from in plants also, in animals also. So that is why today I have chosen the topic कि हम लोग पहले ये क्लैरिफाई करेंगे कि एंजाइम को कैसे क्लासिफाई किया गया है, उनके नाम क्या हैं और उनका काम क्या है. And then we will be taking few good and important examples of enzymes. Moving on to our very first slide about nomenclature of enzymes and EC number, that is enzyme classification number. Let me tell you that according to the rule, each enzyme is classified and named according to the type of chemical reaction it catalyzes. What does it mean? जितने भी एंजाइम्स हैं उनको इस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है और नेम दिया गया है जिस बेसिस पे वो एक केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं. जो भी एंजाइम किसी केमिकल रिएक्शन में अपना रोल प्ले कर रहा है, उस केमिकल रिएक्शन में जो उसका काम है उसके बेसिस पे एंजाइम को क्लासिफाई किया गया है. For example, I have taken an example in my notes, that is of lactate dehydrogenase enzyme. Lactate dehydrogenase enzyme takes place in a chemical reaction. Okay. And taking its example, what I want to explain here is, ये हम further देखेंगे कि किस type के chemical reactions में ये काम करता है. We will discuss it further. But for now, what you need to remember is कि अगर आपको इसका नाम दिया गया है, इसको क्लासिफाई किया गया है, तो वो किस चीज के अकॉर्डिंग किया गया है. So, what is it? Lactate is the substrate of enzyme and dehydrogenase is the type of reaction catalyzed by enzyme. कहने का मतलब क्या है कि जो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज है वो डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कराएगा. फॉर योर वेरी काइंड इंफॉर्मेशन, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज होता है, जिसको हम LDH बोलते हैं, ये एक ऐसा एंजाइम होता है जो आपको शुगर को
कन्वर्ट करने के लिए चाहिए होता है, ताकि आप शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सको फॉर योर सेल्स। आपकी बहुत सारे बॉडी पार्ट्स में, फॉर एग्जाम्पल लीवर है, हार्ट है, पेनक्रियाज है, किडनीज है, इन सभी के अंदर LDH प्रेजेंट होता है। एंड देयर इज डिफरेंट काइंड्स ऑफ LDH प्रेजेंट इन योर बॉडी पार्ट्स। जैसे कि एक H4LDH1 होता है, दैट इज प्रेजेंट इन योर हार्ट एंड RBCs. There is LDH3 that is present in your lungs. LDH5 is present in your liver and striated muscles. Just like that, there are type of LDH enzymes that are present in various tissues of body. And how does it work? It work by converting the sugar into energy for your cells. तो क्या काम कर रहा है वो वहां पे? डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कर रहा है। व्हाट इज LDH डूइंग? डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कर रहा है। इसी बेसिस पे इसका नाम रखा गया है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि जो लैक्टेट है वो सबस्ट्रेट है, लैक्टेट के ऊपर काम करेगा और क्या काम करेगा? डिहाइड्रोजिनेशन कराएगा, इसीलिए इसका नाम रख दिया लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज. This is just an example to explain. And then you have EC number of enzyme, that is enzyme classification number. For example, A.B.C.D, where the first number A indicates class, the second number B indicates subclass, C indicates subclass, and the fourth number indicates subclass. सीरियल नंबर उस क्लास में जो होगा वो फोर्थ नंबर बताएगा, सब क्लास की भी जो सब होगी वो थर्ड नंबर बताएगा, सेकंड नंबर बताएगा कौन सी सब क्लास है, और फर्स्ट नंबर बताएगा कौन सी क्लास है. ये आपको और बेटर समझ में आएगा व्हेन वी विल मूव ऑन फर्दर ऑन नेक्स्ट स्लाइड्स. ठीक है, अभी के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर किसी रिएक्शन को डिस्क्राइब करना है कि एंजाइम किस तरह का रिएक्शन कर रहा है, तो उसके लिए यू नीड A, B एंड C, दैट इज क्लास, सब क्लास एंड सब क्लास. एंड जो लास्ट आपका फोर्थ नंबर है D, वो किस लिए आपको चाहिए? जब आप डिफरेंट एंजाइम्स को डिफरेंशिएट करो जो कि सेम फंक्शन करते हो बेस्ड ऑन एक्चुअल सबस्ट्रेट इन रिएक्शन. कहने का मतलब क्या है? एक ही सबस्ट्रेट है, मान लो लैक्टेट, उसके ऊपर दो डिफरेंट तरह के एंजाइम रिएक्ट कर रहे हैं, उनके बीच में अगर आपको डिफरेंशिएट करना है, कहने का मतलब क्या है कि डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन ही करा रहे हैं दोनों एंजाइम जो लैक्टेट के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन वो दोनों एंजाइम सेम नहीं है, सेम फंक्शन है, एक्चुअल सबस्ट्रेट भी उनका सेम है, लेकिन वैसे दोनों एंजाइम सेम नहीं है, तो उनके बीच में जब आपको डिफरेंशिएट करना होगा देन यू विल नीड अनदर नंबर दैट इज डी, सब क्लास. ओके, so moving on to the next slide about this is totally a theoretical portion, you need to memorize. जैसे आपको नॉर्मली बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर में या जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में याद रखना रहता है ना कि भाई हाँ इस चीज का साइंटिफिक नेम ये है, जस्ट लाइक दैट ऐसे ही आपको एंजाइम में भी ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि A.B.C.D से मैं उसको डिपिक्ट करूंगी या करूंगा. डिपिक्ट करने के बाद क्या चीज क्लास है, क्या चीज सब क्लास है, और किस बेसिस पे उसका नाम रखा जा रहा है. ये आप समझ पा रहे हैं कि किस बेसिस पे रखा जा रहा है. बट आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन कि जो सबस्ट्रेट है एंजाइम का जिस पे वो वर्क करता है और जिस तरह के टाइप ऑफ रिएक्शन को वो एंजाइम कैटालाइज करता है, उसके बेसिस पे उसका नाम दिया जाता है. फाइन, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. सी व्हाट आई हैव ड्रॉन फॉर यू. I hope you people are able to, just get the things I have written in table. Maybe these things would be new for you, but because we have reached to this much level कि हमने इन चीजों के बारे में एटलीस्ट पढ़ा सुना तो है ही, डजंट माइंड कि अब तक हमको याद नहीं था तो, और अगर याद नहीं था देन आई एम हियर टू मेक यू मेमोराइज दीज थिंग्स. आई विल टेल यू अ निमोनिक by which you can memorize it. ठीक है, निमोनिक्स आर लाइक कि मैं आपको बताऊंगी कि क्या शॉर्ट फॉर्म है, किसके सहारे आप इसको याद कर सकते हो. देर आर 6 क्लासेस, कई बार नहीं भी याद रहती हैं, अदरवाइज यू गेट कंफ्यूज्ड लॉट ऑफ टाइम. तो उसके लिए आई विल गिव यू निमोनिक्स जिससे आप इसको याद करोगे. बट बिफोर दैट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि मैंने ये टेबल किस बेसिस पे बनाया है और किस लिए बनाया है. ओके,
मैंने आपको बताया कि एंजाइम्स को क्लासिफाई किया गया है उनके नॉमेनक्लेचर को देने के लिए, या जिस तरह का वो रिएक्शन करते हैं उसके बेसिस पे उसको क्लासिफाई कर दिया है। नाउ वो क्लासिफिकेशन है क्या, किस तरह से आप उसको याद करोगे? सो देयर आर 6 क्लासेस फॉर एंजाइम। एंजाइम्स को 6 क्लासेस में डिफरेंशिएट कर दिया गया है, क्लासिफाई कर दिया गया है। व्हाट आर दीज क्लासेस? These are enzyme classification 1, EC2, EC3, EC4, EC5 and EC6. Do you get it? It's EC1, EC2, EC3, 4, 5, 6. अब जो EC1 है, EC1 में किस एंजाइम क्लास को रखा गया है? These are oxidoreductases. What are the enzymes that are taken in EC1? These are oxidoreductases. You would have read about oxidation and reduction reactions in your chemistry class. Oxidation reduction reactions को करने वाले enzymes are oxidoreductases. What does they do? The oxidoreductases catalyzes redox reactions. See, everything under the sun cannot be written in a slide, and everything under the sun cannot be written in notes that I am presenting you. But मैं आपको हर चीज pronounce कर रही हूँ. I am dictating everything to you, so you need to note down these things. This table is on the basis जो important है. आपको ये पता रहना चाहिए कि what is the chemistry behind these classification things. लेकिन for making proper notes, for making proper subjective points, आपको वो सब लिखना पड़ेगा what I am teaching you, what I am dictating you. Okay. So मैंने क्या डिक्टेट किया फर्स्ट पॉइंट में कि oxidoreductases are the enzymes that catalyze redox reactions. Now you see the function of enzyme. Why I have written these chemical reactions? So that आपको properly समझ में आए. Because जब आप लोग cycles पढ़ेंगे, metabolic processes पढ़ेंगे और वहां पे enzyme का use होगा, तो वहां पे आपको कोई points नहीं पढ़ने हैं. वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि अच्छा मेरे पास ये A एंजाइम था, इसके ऊपर B ने काम किया, जो कि B मतलब सॉरी A आपके पास सबस्ट्रेट था, उसके ऊपर एक एंजाइम ने काम किया और वो प्रोडक्ट B में कन्वर्ट हो गया, जस्ट लाइक दैट. तो उसके लिए यू नीड टू visualize the chemical reactions. Okay, for that purpose I have written the chemical reactions, and subjective points I am dictating you. ऑक्सीडोरिडक्टेज नाम से ही बता रहा है वो कैटेलाइज करता है रिडॉक्स रिएक्शंस को, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को. और कैसे करता है? फॉर एग्जांपल यू हैव ए सबस्ट्रेट जो कि मतलब रिड्यूस फॉर्म ऑफ ए सबस्ट्रेट आपके पास है एंड बी की ऑक्सीडाइज फॉर्म है. जब एंजाइम उसके ऊपर काम करेगा तो व्हाट विल इट डू? ए को ऑक्सीडाइज कर देगा एंड बी को रिड्यूस कर देगा. डू यू गेट इट? ए रिड्यूस्ड plus B oxidized get converted into A oxidized plus B reduced. इसके अंदर आते हैं अब हमारे पास एग्जाम्पल. कौन से एग्जाम्पल? कि किस किस तरह के एंजाइम्स होते हैं दैट वर्क. ऑक्सीडोरिडक्टेज में जब हम एंजाइम की बात करें तो देयर आर ऑक्सीडेजेस, डिहाइड्रोजिनेज, ऑक्सीजनेज एंड परऑक्सीडेज. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं. ऑक्सीडोरिडक्टेज वाली जो क्लास ऑफ एंजाइम है हमारी, उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो उसके साइड में मैंने बताए हैं. ऑक्सीडेज, डिहाइड्रोजिनेज, ऑक्सीजनेज, पेरोक्सीडेज. कैसे हैं ये इसके एग्जाम्पल? किस बेसिस पे इनको आपने एंजाइम क्लासिफिकेशन 1 में डाल दिया? कैसे डाल दिया? जो ऑक्सीडेज है उसका काम होता है O2 को एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यूज करना. अगर आप लोगों को अपने कंसेप्ट्स याद हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन के, तो वहां पे बहुत सारे कंसेप्ट्स आर देयर. ऑक्सीडाइज हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, इलेक्ट्रॉन को का लॉस कर देता है, एसिड की तरह बिहेव करता है, बेस की तरह बिहेव करता है. देयर आर सो मेनी थिंग्स. उनके बेसिस पे आई एम टेलिंग ऑक्सीडेज का काम क्या है, कैसे वो रिडॉक्स रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहा है. Oxidase use oxygen atom, that is O2, as electron acceptor. Fine, this is the function of oxidase enzyme. Now what about dehydrogenase?
Dehydrogenase use molecules like NAD plus, that is nicotinamide, फाइन, एंड इस तरह के मॉलिक्यूल्स NAD प्लस को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह वो यूज करता है. कौन यूज करता है? डिहाइड्रोजिनेज. इसी बेसिस पे हमने उसको किस में रख दिया है? वी हैव पुट इट इन एंजाइम क्लासिफिकेशन 1, जो कि ऑक्सीडोरिडक्टेजेस की क्लास है. You must have heard about nicotinamide, NAD plus. I am telling nicotinamide adenine dinucleotide. I was saying the short form to you, but maybe some of you could not understand. That is NAD plus. आप इसके बारे में आगे बहुत फर्दर पढ़ेंगे. फोटोसिंथेसिस के चैप्टर में, रेस्पिरेशन के चैप्टर में मल्टीपल टाइम्स NAD प्लस विल कम. तो वहां पे इस तरह के एंजाइम्स का यूज होगा. एंजाइम्स लाइक डिहाइड्रोजिनेज. क्यों? क्योंकि ये NAD प्लस जैसे मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह यूज करके रिएक्शन को कैटालाइज करता है. कौन? डिहाइड्रोजिनेज. सो is the first point very clear to you? I have talked about oxidoreductase enzyme classification 1. Oxidoreductase catalyze the redox reactions. How does they catalyze? I have shown this as function of enzyme in box number 1. We have examples named as oxidase, dehydrogenase, oxygenase, peroxidase. Without going in so much detail about every example, I have taken common example of oxidase and dehydrogenase, that oxidase use O2 as electron acceptor and dehydrogenase use molecules like NAD plus, nicotinamide adenine dinucleotide plus as electron acceptors. Fine. Moving on to the EC2 enzyme classification 2, that is transferase. ट्रांसफरेज नाम से ही पता चल रहा है क्या कर रहे हैं? ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन को कैटालाइज कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? एक मॉलिक्यूल से दूसरे ग्रुप में, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ग्रुप का ट्रांसफर कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल AB is a portion and plus C we have another group. अब क्या किया उसने? B को ट्रांसफर कर दिया C के पास, A रह गया सिंगल प्रोडक्ट. Do you understand? We had A and B associated groups and we had C, but when transferase enzyme acted on it, उसने क्या किया? A को अकेला प्रोडक्ट छोड़ दिया और C के साथ B को चिपका दिया. B को ट्रांसफर कर दिया C के साथ. That is, कौन कौन करता है इस तरह का काम? Kinases, phosphorylases, transcarboxylases. Very important enzymes, all of three. Kinases, phosphorylases, transcarboxylases. बहुत जगह आप काइनेसेस और फोस्फोराइलेसेस के बारे में पढ़ेंगे when we will study about plant physiology in detail. So kinases का काम क्या होता है? What does kinases do? They transfer phosphate from ATP to a substrate. क्या करते हैं? ATP से फोस्फेट लेकर they transfer it to substrate. What does kinase do? They transfer phosphate from ATP to a substrate. Similarly, you must have heard about transcarboxylases even in chemistry. Transcarboxylases का काम क्या होता है? COOH ग्रुप. कौन सा ग्रुप? COOH ग्रुप. COOH ग्रुप का ट्रांसफर करना, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का ट्रांसफर करना, इसका काम कौन कर रहा है? ट्रांस कार्बोक्सिलेजेस. कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मतलब COOH. ओके, ट्रांस मतलब ट्रांसफर, तो ट्रांस कार्बोक्सिलेज का मतलब ट्रांसफर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. ओके, नाउ we have EC3, that is hydrolase. What does hydrolase do? Hydrolase का काम है catalyzing the reactions where bonds are cleaved by adding H2O. कहने का मतलब है ऐसे रिएक्शंस की कैटालिसिस कराना जहां पे बॉन्ड्स की क्लीवेज
ड्यू टू एडिशन ऑफ वाटर हुई हो। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव बॉन्ड्स बिटवीन ए एंड बी एंड यू हैड वाटर, वाटर ऐड होने की वजह से ए और बी बॉन्ड क्लीव हो गए, टूट गए। तो क्या हुआ, ए के साथ H आ गया वाटर का, बिकॉज आपको पता है वाटर किस में टूटता है, H पॉजिटिव एंड OH माइनस आयंस में। सो ए के साथ क्या आ गया, H, बी के साथ क्या चला गया, OH। दिस इज व्हाट, हाउ रिएक्शन गॉट कन्वर्टेड, हाउ रिएक्शन गॉट कंप्लीटेड। ये काम कौन कराते हैं, किस तरह के मॉलिक्यूल्स, किस तरह के एंजाइम्स, फॉस्फेटेजेस, पेप्टाइडेजेस, फोस्फोडाइएस्टरेजेस। पेप्टाइडेजेस के बारे में आपने पढ़ा होगा या आप फर्दर पढ़ेंगे। इफ यू हैव नॉट स्टडीड एनिमल फिजियोलॉजी येट, देयर विल बी फर्स्ट चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके अंदर यू विल रीड अबाउट पेप्टाइडेजेस। उनका काम क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड्स जो होते हैं प्रोटीन के, उनको क्लीव करना। प्रोटीन्स में वी हैव पेप्टाइड बॉन्ड्स, ओके। तो उनको डाइजेस्ट जब आप करते हो प्रोटीन्स को, तो उसके लिए व्हाट डू यू नीड, यू नीड पेप्टाइडेजेस। हमारी ह्यूमन बॉडी में भी, डाइजेस्टिव सिस्टम की मैं बात कर रही हूँ, यू विल रीड अबाउट पेप्टाइडेजेस देयर। पेप्टाइड बॉन्ड जो मैं बात कर रही हूँ, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, जब आपके पास दो मॉलिक्यूल्स हों और एक मॉलिक्यूल का कार्बोक्सिल ग्रुप, दैट इज COH ग्रुप, जब रिएक्ट करेगा दूसरे मॉलिक्यूल के अमीनो ग्रुप के साथ, रिलीजिंग वाटर, देन पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है, ये प्रोटीन्स में प्रेजेंट होता है और इसको क्लीव करके पेप्टाइडेजेस काम करते हैं। देन यू हैव फोस्फेटेजेस, जिनका काम है, नाम ही बता रहा है कि सबस्ट्रेट से फोस्फेट को रिमूव कर देते हैं, बिकॉज बट अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं वो, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करा रहे हैं ना। सो व्हाट दे आर डूइंग, सबस्ट्रेट से फोस्फेट को रिमूव करने का काम करते हैं, कौन, फोस्फेटेजेस। देन यू हैव अनदर एंजाइम, फोस्फोडाइएस्टरेजेस। नाम सजेस्ट फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स को क्लीव करना। कौन से बॉन्ड्स को, फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स को क्लीव करना, दैट इज द वर्क डन बाय phosphodiesterases. Then you have enzyme class number 4 known as lyases. Lyases, LYASES, see it. Lyases का काम क्या है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। लेकिन ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड तो हाइड्रोलेज के केस में भी हो रहा था, बट वो कैसे हो रहा था, वाटर ऐड हो रहा था। तो लाइजेज उससे अलग कैसे हुआ, ये इसलिए अलग है बिकॉज C बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन CO बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन CN बॉन्ड, कार्बन सल्फाइड CS बॉन्ड, एंड इस तरह के और अदर बॉन्ड्स, उनकी ब्रेकिंग का काम करता है लाइएज। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव A bonded with B, that is A double bond B plus HX is some another molecule। तो वहां जाके वो क्या कन्वर्जन कर देगा, X को A के साथ ले आएगा और B के साथ H को छोड़ देगा। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। कहने का मतलब क्या है कि एल्डोलेजेस के बारे में आपने सुना होगा, यू वुड हैव रेड अबाउट एल्डोलेजेस। व्हाट डज एल्डोलेजेस डू, दे रिमूव एल्डिहाइड वाया एलिमिनेशन रिएक्शन। केमिस्ट्री का एक रिएक्शन है, आपने पढ़ा होगा या आप फर्दर पढ़ेंगे, उसकी बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हमारे पास कहीं एल्डिहाइड मॉलिक्यूल आ जाता है तो उसके ऊपर कौन एक्ट कर सकता है, एल्डोलेज एक्ट कर सकता है, ताकि वो एल्डिहाइड को रिमूव कर दे एलिमिनेशन रिएक्शन से, टू कन्वर्ट इट्स फर्दर प्रोडक्ट। जब हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से ये काम करता है। उसके बाद वी हैव सिंथेज, नाम ही बता रहा है क्या करेगा, लिंक करेगा दो मॉलिक्यूल को। सिंथेज का मतलब बनाना। What does it do? Link two molecule but without involvement of ATP and GTP। कहने का मतलब है कंडेंसेशन रिएक्शंस को कैटेलाइज करेगा, दो मॉलिक्यूल्स को लिंक करेगा, लेकिन ATP और GTP को यूज किए बिना। Mind it, you have two molecules that both belong to you have two enzymes that both belong to different enzyme classes। एक है सिंथेज जो कि EC4 लाइएज से बिलोंग करता है,
एक है सिंथेटेज, लास्ट एंजाइम दैट आई हैव रिटन इन दिस टेबल, सिंथेटेज, वो बिलोंग करता है एंजाइम क्लासिफिकेशन नंबर 6 से, दैट इज लाइगेज। इन दोनों के बीच में देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, एंड व्हाट इज दैट डिफरेंस? दोनों का काम है कंडेंसेशन रिएक्शन को करना, फाइन, लेकिन कैसे? जो सिंथेटेज है, सिंथेटेज दैट यूजेस एटीपी एंड जीटीपी, उसको एनर्जी की जरूरत है किस फॉर्म में? एटीपी या जीटीपी के फॉर्म में। लेकिन आपका जो सिंथेज है उसको एनर्जी की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही कंडेंसेशन रिएक्शन करता है विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एटीपी एंड जीटीपी, फाइन। और आप कैसे याद रखेंगे ये बात? देखो, सिंथेज में एक ही बार, सिंपल है उसको प्रोनाउंस करना, बोलना सिंथेज को सिंपल है, सिंथेज, ओके, इसका मतलब उसमें कोई एनर्जी नहीं लग रही। लेकिन सिंथेटेज 2 बार बोलना पड़ रहा है टी को, तो एक तो 2 बार टी आ रहा है इसीलिए एटीपी जीटीपी, ठीक है, और दूसरा उसको बोलने में एनर्जी लग रही है क्योंकि बड़ा मॉलिक्यूल है सिंथेज के कंपैरिजन में, तो एनर्जी लग रही है, इसका मतलब उसको एनर्जी की जरूरत है, वो एटीपी या जीटीपी को यूज कर रहा है। कैसे याद रखेंगे आप? डू यू गेट द ट्रिक? सिंथेज को वी आर स्पेलिंग इजिली सिंथेज, तो उसको एनर्जी की जरूरत नहीं है। सिंथेटेज में हमारी एनर्जी लग रही है, तो इट मींस उस मॉलिक्यूल को भी एनर्जी की जरूरत है कंडेंसेशन रिएक्शन कैटालाइज करने के लिए। देन यू हैव फिफ्थ क्लास EC5 ऑफ आइसोमरेज। आइसोमरेज का क्या काम है? इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट कराना ताकि आइसोमेरिक फॉर्म बना सकें। आइसोमर्स के बारे में तो आपने पढ़ा होगा, यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट आइसोमर्स, वी आर स्टडिंग आइसोमर्स सिंस 9th और 10th क्लास, ठीक है। क्या होते हैं आइसोमर्स? व्हाट आर द आइसोमर्स मॉलिक्यूल जिनका ये काम, मतलब आइसोमरेज जिन पे काम करता है। आइसोमर्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, कहने का मतलब है कि सेम नंबर ऑफ एटम होते हैं हर एलिमेंट में, लेकिन जब हम उनके अरेंजमेंट की बात करते हैं स्पेस में, जब हम विजुअलाइज करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री की जहां हम बात करते हैं, तो वो डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट फॉलो करते हैं। कौन? आइसोमर्स। इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम आइसोमर्स बोलते हैं, दैट आर सेम आइडेंटिकल in their molecular formula but they lie distinct in their arrangement in space। ऐसे जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर आइसोमर्स, और इन आइसोमरिक फॉर्म्स को यील्ड करने के लिए, ऐसे आइसोमरिक फॉर्म्स बनाने के लिए इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट कराने वाले एंजाइम्स को बोलते हैं आइसोमरेज। फॉर एग्जाम्पल म्यूटेजेस एंड एपीमरेजेस। ऐसे और भी बहुत सारे होते हैं, देयर इज सिस ट्रांस आइसोमरेज, इस तरह के एंजाइम भी होते हैं, बट आई हैव टेकन 2 कॉमन एग्जाम्पल, म्यूटेजेस एंड एपीमरेजेस। म्यूटेजेस का क्या काम है? इंटरमॉलिक्यूलर ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, और सिमिलरली एपीमरेज भी काम करते हैं जब एपीमर्स बनाने की बात आती है। तो ये दिस इज अ वेरी मच डिटेल ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री, ये कोई एक नाम से आप याद नहीं कर सकते एपीमरेज क्या, यू शुड नो द केमिस्ट्री बिहाइंड दीज थिंग्स, जिसके लिए आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री के बेसिक्स पता होने चाहिए, देन यू विल बी एबल टू यू नो आइडेंटिफाई एंड लर्न दीज थिंग्स इजिली। देन यू हैव एग्जाम्पल क्या है? ए बी मान लो मॉलिक्यूल था, उसको कन्वर्ट करके बी ए में बदल दिया, कहने का मतलब मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट बदल दिया उसका स्पेस में, लेकिन उसकी मॉलिक्यूलर फॉर्म सेम है। उसके बाद यू हैव लास्ट क्लास EC6 ऑफ लाइगेज, वेयर यू हैव एग्जाम्पल ऑफ कार्बोक्सिलेज एंड सिंथेटेज। For example, you have A plus B plus ATP that gets converted into A bond B plus ADP। ठीक है, समझ रहे हैं क्या हुआ यहाँ पे? कि ATP की हाइड्रोलिसिस से एनर्जी मिलती है और फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड कैटालाइज हो जाती है, ठीक है। ATP को यूज किया, उसकी एनर्जी को यूज किया, किसने किया? कार्बोक्सिलेज और सिंथेटेज जैसे एंजाइम्स ने। सिंथेटेज ने कंडेंसेशन रिएक्शन कैटालाइज करी यूजिंग ATP एंड GTP, जबकि जो कार्बोक्सिलेज है वो एज अ सबस्ट्रेट कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को यूज करता है। वी आर डन विद दिस थिंग, और इसको याद करने के लिए एंजाइम क्लासिफिकेशन 1 and 6 तक इसको याद करने के लिए व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज ऑक्स ट्री हाइड्रोलाया आइसोमेरा ले गया, समझे?
ऑक्स ट्री हाइड्रोलाया, जैसे क्रिसमस ट्री होता है उस तरीके से समझो कि कोई ऑक्स ट्री है, ऑक्स ट्री हाइड्रोलाया आइसोमेरा लेगा, ठीक है। इसके कहने का मतलब, जिनको मैंने देखो बोल्ड लेटर में लिखा है, वहां से आपको एंजाइम की क्लास मिल जाएगी। ऑक्स का मतलब ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्री में टीआर का मतलब ट्रांसफरेज, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोलेज, लाया मतलब एल वाई लाया लाइएज, आइसोमेरा मतलब आइसोमरेज, लेगा मतलब लाइगेज, ओके, लाइगेज, LIGASC, लाइगेज। These are the mnemonics that you can remember, ताकि आपको याद रहें, क्योंकि ये ऐसे आप इसको उल्ट पुल्ट नहीं लिख सकते हो। यू कैन नॉट राइट कि हाइड्रोलेज इज EC1, लाइएज इज EC6, नो, इट्स नॉट लाइक दैट, इट इज नेसेसरी। ये क्लासिफाई किया गया है, जैसे साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर होता है, जस्ट लाइक दैट EC नंबर इज क्लासिफाइड एंड इट इज फिक्स। EC1 में ऑक्सीडोरिडक्टेज ही आएगा, सिमिलरली 2 में ट्रांसफरेज आएगा, 3 में हाइड्रोलेज, 4 में लाइएज, 5 में आइसोमरेज, 6 में लाइगेज। इसी के लिए आई एम गिविंग यू द ट्रिक टू रिमेंबर कि ऑक्स ट्री हाइड्रोलाया आइसोमेरा लेगा, ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइएज, आइसोमरेज, लाइगेज। इसको 1 2 3 4 5 6 ऐसे आपको याद रखना है। So we are done with this table. I hope everybody is feeling easy to learn these things, to get these things in your mind easily. यहाँ पे मैंने लिखा है, I have tried to write the subjective points because you will need to remember these things for your subjective exam as well. ऑक्सीडोरिडक्टेज या डिहाइड्रोजिनेज, ये जो क्लास है एंजाइम की, इसका क्या फंक्शन है, क्या इसके एग्जाम्पल्स हैं, बेसिकली यही दिस टेबल दैट आई हैव शोन, उसको मैंने यहाँ पे डिपिक्ट किया है to make the things easier for you. You can learn these things. I have already talked about these things in detail. पुराने टेबल में ही मैंने आपको ये सब कुछ बता दिया है, उसको देखते हुए ही I have already dictated everything to you. But to make notes and to memorize and to remember better, you may write it from the slides. This is a slide for the first 2 classes. Then you have next 2 classes, their examples and their function, hydrolase and lyase. Then after that you have isomerases, ligases का example I have taken RUBP carboxylase, phosphoenol pyruvate, PEP carboxylase, RUBP and PEP carboxylase. We will read about these 2 enzymes in metabolic reactions and chapter of plant physiology. Then after that we have a surprise for today, that is feature of the day. What are the features of the day? Number 1, from science point of view, we have National Asparagus Day. These are the sticks of asparagus that I have shown in the picture. You would have heard about asparagus. Some of you might have even eaten asparagus as vegetable. इसके अलावा आपकी बुक में व्हेन यू रीड अबाउट मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स, वहां पे भी एस्पैरागस की बात आती है, प्लांट की। तो एस्पैरागस, व्हाई वी आर सेलिब्रेटिंग नेशनल एस्पैरागस डे टुडे? बिकॉज asparagus has 2 values. It is used as a vegetable as well as it has medicinal value due to its diuretic properties. What does we mean by diuretic? Diuretic basically एक class of drugs होती है if we talk about pharmacology. लेकिन you know commonly layman language में थोड़ा बताने जैसा क्या है कि ऐसा सब्सटेंस है, ये डायूरेटिक प्रॉपर्टीज एस्पैरागस में है, तो इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई सब्सटेंस दैट प्रमोट्स डायूरेसिस। डायूरेसिस का मतलब इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। अगर किसी को उस तरह का प्रॉब्लम होता है देन दैट पेशेंट्स कैन बी ट्रीटेड एज विद मेडिसिन विद एस्पैरागस। जिनको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन या मतलब प्रॉपर यूरिनेशन का प्रॉब्लम होता है, for that purpose, because asparagus has diuretic property because it promotes the increased production of urine. So अगर you know आपको
एस्पैरागस को यूज करना है तो यू कैन यूज इट एज अ मेडिसिन एज वेल एज इट कैन बी यूज्ड एज, इट इज ऑफनली यूज्ड एज वेजिटेबल। इनको हम वाटर पिल्स भी बोलते हैं, डायूरेटिक्स को। तो उस तरीके काम करता है एस्पैरागस। तो उस सबको प्रमोट करने के लिए नेशनल एस्पैरागस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 24th May 2021. Along with that, it is a rich source of vitamin K. Vitamin K is very necessary for your bones, joints and all. तो उस सब का रिच सोर्स है एस्पैरागस। और अदर देन दैट, मतलब क्या होगा कि विटामिन के की डेफिशिएंसी नहीं होगी, और यू नो आपको ब्लड कोगुलेशन के लिए भी विटामिन के इज वेरी नेसेसरी। आपकी बोन्स में, अदर टिश्यूज में जो कैल्शियम की कंट्रोल्ड बाइंडिंग हो उसके लिए भी विटामिन के इज नेसेसरी। सो you can eat this as a rich source of vitamin K. Scientific name for asparagus is Asparagus officinalis, and its growth rate is very higher. इस प्लांट का ग्रोथ रेट हायर होता है, that could be as high as 1 inch per hour. Also, on the other side, we have National Brothers Day today. So, ये दिन हम अपने शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकते. This is a very beautiful relation we share, brother and sister, two brothers, and cousins or your real brothers or be it anyone. तो this is the day. सिर्फ आज का दिन नहीं है when you should share love on them, but every day to let them know that how much you love them, how much they mean to you, how important they are in your life. तो उसके लिए आपको हर रोज उनसे अच्छे से रहना चाहिए. You should shower love on them, you should treat them very carefully and very properly. Of course we have fights. मेरी भी अपने ब्रदर के साथ फाइट होती है, आपकी भी होती होंगी. वो तो एक खट्टा मीठा रिश्ता होता है. So that is why we have fights, but do fight but then hug him tight. And you share laughters and tears because you have to remove each other's fears. Fine, we have these two important days for today. We are almost done for the today. In our next session, we are going to deal enzymes and their cofactors as well as enzyme catalytic strategies. So before moving ahead, be prepared with your this topic that we have covered today and all the topics we have covered till date. We have already डन द एंजाइम क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है क्योंकि आपको हर एक एंजाइम का नाम, उसके फंक्शन पता होने चाहिए ताकि जब आप किसी भी एंजाइम से किसी मेटाबॉलिक रिएक्शन में या प्रोसेस में स्ट्राइक करो तो आपको तुरंत ध्यान आ जाए कि हाँ इसका यूज यहाँ पे क्यों हुआ, क्योंकि मैं इस एंजाइम के सहारे इस रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहा हूँ. Other than that, of course, you have all the videos available and upcoming lectures will be super soon available on Nishita's Botanic YouTube. Everyone needs to share this. Kindly share this so that everyone can get benefit. You have to post or comment down your feedbacks, suggestions, as well as what you want to see in upcoming lectures. And you have to subscribe the channel, please. So happy learning, everyone. Thank you.